Yamah Mrityukshcha, Yamuna Mokshda Pavitra. Yam and Yamuna. One signifies the end of life, the other, freedom from its burdens. Long ago, they lived together as brother and sister, but they decided to part ways. The brother descended to Pitralok to guide and govern the dead, while his sister stayed behind, giving life and hope to those still living. For thousands of years, people have come to her banks to pray, to mourn, to begin again. Cities were born along her shores, rising and falling, yet she nurtured them all like a mother, witnessing the lives of her children and their struggles, and promising them life, hope, and liberation through her waters. She nurtured the living through every season, like her mother, Sanjana, and guided them with the warmth and light of her father, Surya. She is not just a river, she is a mother who cradles civilizations in her womb, a witness to the rise and fall of towering empires, and a mourner of every rebel. For generations, the Yamuna has been more than a river. She has carried memory and faith. Along her banks in Mathura and Vrindavan, divinity took human form. These waters witnessed Leela not as a distant myth, but as everyday life, lived in grace, laughter, and mischief. But Yamuna's role was not only spiritual. She quietly shaped the course of history. As settlements grew along her banks, the river became the backbone of urban life, most evident in Delhi. Over centuries, successive rulers founded their cities close to Yamuna, beginning with Indraprasth, Tughlaqabad, Firozabad, and Shahjahanabad. The river drew them in. Its waters sustained people and animals. Its floodplains fed agriculture. And its course offered routes for movement and defense. From the Taj Mahal and the Red Fort to the Akshardham temple, monuments across centuries rose along her edge. Even as the river witnessed conflict from Tarin and Panipat to the rebellion of 1857. Yet beyond wars, empires, and stone, the Yamuna continued to sustain everyday life. The Yamuna's journey begins high in the Himalayas. She rises from the Yamunotri glacier near the Bader Pooch peaks at over 6,000 meters above sea level. From a narrow mountain stream, she grows into a major river flowing for nearly 1,400 kilometers through Uttarakhand, Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh, before finally meeting her sister Ganga at Prayagraj. The Yamuna basin today covers over a third of the Ganga basin and nearly a tenth of India's land area. Yet much of her flow is no longer natural. Barrages and canals, especially in the upper stretches, divert water for irrigation, regulating the river long before it reaches the plains.
By the time the Yamuna reaches major cities, especially Delhi, much of her natural flow has already been taken away. What remains is no longer strong enough to cleanse itself, recharge floodplains, or support life. A living river is reduced to a controlled channel. She begins her journey healthy in the upper stretches, but as the Yamuna enters the Delhi NCR, she starts to weaken. At Palla, the first signs appear. Industrial waste marks the beginning of a decline. Within the short span, just 22 kilometers absorb nearly 76% of the river's total pollution load. Here, dissolved oxygen collapse, often falling to zero, leaving the river unable to sustain fish, insects, or plant life. Biochemical oxygen demand surges, rising to 60, 70, even 90 milligrams per liter, when anything above 3 is already unsafe, driven by untreated sewage and organic waste. Fecal contamination reaches extreme level. This 22-kilometer stretch through Delhi is officially classified as critically polluted, a dead zone. Here, the river darkens, the water turns black, slow, and heavy, more resembling death than a river. Not Yamuna, the giver of life, but Yam. This Yamuna still flows. But in this stretch, she does not live. She carries not water, but the weight of neglect. डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग 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 भाग, भाग, भाग। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। ये तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 affected by worst pollution crisis both in air and water currently. I am here at the Kalindi Kunj where I'll show you in the visual the current condition of river Yamuna, where the toxic foam has started forming here, and currently you can see in the visuals wherever you will be looking, you will be seeing a white color toxic foam, and people from the administration and Delhi Jal Board are spraying the chemical into the Yamuna to suppress the foam. But in the visuals you can clearly see the current condition of river Yamuna. We have also seen that politics escalating on this issue. केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना, तभी तो यमुना साफ होगी। कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है कि मैं आके कहूँ कि हाँ मैंने छड़ी घुमा दी और यमुना जी साफ। The Yamuna suffering has clear causes, and most of them are not hidden. They are structural and they are human. The river we worship as a goddess is treated like a dream. In myth, Yamuna grants life and liberation. In reality, she is forced to carry our waste, not by fate, but by choice. नब्बे वॉलंटियर्स के बीच में से 15 आता है, थैली लेता है,
उसमें उनका कुछ रिलीजियस लिस्ट होगा और थैली समेत है तो कैमरा में। तो ये एक ब्लड सैंपल की बॉटल है। तो जो भी बड़ी बड़ी अपनी कॉमरेड्स हैं, जो अपनी चेन्स हैं हॉस्पिटल्स की, वो उनके पास बहुत सारा मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है और मेडिकल वेस्ट जनरेट करने के बाद एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर उस मेडिकल वेस्ट को ओपन ना मिले, ओपन ग्राउंड्स में ना मिले। अब ये मेरे पास एक ब्लड सैंपल की बॉटल है, किसी ना किसी हॉस्पिटल से जरूर आई होगी, जो बड़ी बड़ी चेन्स है उनकी तरफ आई। इसमें अभी ब्लड है, ये नहीं है कि खाली है, इसमें ब्लड है। लोग यहीं पे गंगा को माँ समझ के, यमुना को माँ समझ के इसमें नहाने जाते हैं। अगर ये ब्लड जो है उस पानी में मिला हुआ है तो जो बीमारी इस बंदे को होगी, जिसने ब्लड हॉस्पिटल में ब्लड कोई ऐसे मजे के लिए तो करवाने जा नहीं रहा है, उसे कोई ना कोई बीमारी रही होगी तभी उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। वो बीमारी वाला ब्लड जो है वो उस बंदे के नहाते हुए उसके मुंह में जाएगा, उसकी आंखों में जाएगा, उसके कोई ओपन कट है तो उसमें जाएगा, तो क्या उस बंदे को वो बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं बीच में। तो हमें सारे फैक्टर्स को, ये नहीं किसी एक फैक्टर को ऊपर ब्लेम करके हम गंगा ठीक कर सकते हैं। हमें सारे फैक्टर्स को एक एक करके टैकल, जितने फैक्टर और भी फैक्टर होंगे, हो सकता है मेरे को सिर्फ 3 बताऊँ, हो सकता है 5 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो, 10 फैक्टर हो। हमें उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको टैकल करके उस हिसाब से हमें पॉलिसी लेवल पर चेंज लाना चाहिए। या लोग अभी इसके अंदर हाँ कोई कॉस्मेटिक कंपनी है आई गेस, जिसने कोई तो रशिया के लिए क्रीम बनाई हुई थी और उसने अपना का पूरा बैच, अभी वो क्रीम हमारे पास है नहीं, सैंपल होता मैं जरूर दिखाता। हमने सर्च किया, वो रशियन के ऊपर उसका कुछ नाम लिखा था, तो उसका मच्छर वगैरह उसके ऊपर पनपेंगे, तो फूल भी इसके अंदर नहीं आ सकते। दूसरा टाइप का जो हमें वेस्ट मिला जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, वो एक इन्वेजिव स्पीशीज है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद वाटर हाइड्रा नाम है उसका। ये जो आप ऊपर फ्लोट करता देख रहे हो ना, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है जो पूरी नदी के ऊपर एक फ्लोटिंग बेड बना लेती है। तो जो ऊपर जब नदियाँ मूव करती है ना, जब वेव्स आती हैं, तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो उसको डिजोल्व करती है। लेकिन जब वाटर हाइड्रा एक चादर की तरफ पर काम करता है और नदी में और ऑक्सीजन डिजोल्व होने नहीं देता। तो आज यमुना के अंदर 80 ट्यूब्स, 90 ट्यूब्स, कोई बंदा 80-90 ट्यूब्स यूज़ करके तो फेंकेगा नहीं, खासकर अनयूज। तो उन्होंने पूरा का पूरा बैच यहाँ पर डंप कर दिया। When pollution flows through so many hands, who is really accountable? Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Everyone touches the Yamuna, but no one holds her. One runs sewage plants, another manages drains, a third governs riverfront land. Pollution boards regulate on paper, upstream authorities release water, but no one watches the whole river. दिल्ली में इंडस्ट्रियल वेस्ट का कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा नहीं है, 10% आप मान सकते हैं। 80% से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन वो सीवेजेस का है और 5 से 10% जो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ का है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्योंकि दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है, पर हरियाणा और जो है दिल्ली के अप स्ट्रीम पे है बहुत सारे इंडस्ट्री है, डाइज के हैं, अलग अलग इंडस्ट्री है जिसके वेस्ट वाटर आ रहा है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे यमुना पॉल्यूशन में प्लास्टिक की क्या स्थिति है, प्लास्टिक वेस्ट की? देखिए, अगर आप यमुना में देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढे तो ये है कि हमारी सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिबल है और हमारा नेग्लिजेंस वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। अब नेग्लिजेंस कैसे कि अब यहाँ पे आएंगे लोग नहा रहे हैं, ये पानी देख के ही लग रहा है इतना पोल्यूटेड, बट फिर भी लोग नहा रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था है, नहा रहे हैं, उसके साथ साथ कपड़े भी यहाँ पे डाल के जा रहे हैं। तो एक तो है कि क्या नदियों का काम क्या है, प्रकृति ने नदी बनाई है नदी में पानी बहने के लिए, पर आप आके यहाँ पे कपड़े डाल दें, आप आके प्लास्टिक डाल दें, आप फूल डाल दें जो कि नदी को पोल्यूट कर रही है। उनके साथ साथ दूसरा है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या हाउस होल्ड का हो, तो वो भी प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये वहाँ पे लगा हो कि यहाँ इस नदी में कुछ भी ना डालें। एनजीटी की पॉलिसी है पोल्यूटर पे के अकॉर्डिंग कि आप यमुना जी में कुछ भी नहीं डाल सकते, कोई भी वस्तु डालते हैं तो वो फाइन है, वो आपको पे करना पड़ेगा उसका। उनके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे एक भी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो रही है। आप सिटीजन को अवेयर नहीं कर पा रहे, नदी वस्तुएं डंप करने के लिए नहीं है, नदी है आप आइए नहाइए जाइए पर कुछ डंप न करें, एक भी बोर्ड नहीं है। उनके साथ साथ आपको डस्टबिन भी नहीं देखने के लिए मिलेगा इस घाट पे। तो एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट की फेलियर है, दूसरा जो सिटीजन का फेलियर है कि हमें एक चीज़ देखना होगा कि आज से 1000 साल पहले 2000 साल पहले क्या
आस्थाएं थी, क्या प्रथाएं थी, क्या वो आज उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, या उसको फिर से हमें देखना पड़ेगा कि या वो जो प्रथाएं हैं वो किस तरीके से जो है हमारी नदियों को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो उसको रिविजिट करे, उसको बेहतर करे। तो इसमें जो है हम कहेंगे कि समाज, सरकार और इंडस्ट्री सभी जिम्मेदार हैं, और हम सबको मिलके एक साथ समझना होगा कि नदी का कार्य क्या है। नदी वो जो आपको जीवन देती है, आपको पानी देती है, पीने का भी, नहाने का भी, और भी दूसरे कार्यों का, तो क्या उसमें आप गंदगी डालेंगे? और एक सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आते हैं, कहते हैं नदी में फूल डाल देते हैं, कहते हैं नदी में कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट जा रहा है, वो तो जा ही रहा है, पर क्या आप जो पानी पी रहे हैं उसमें फूल डाल के 5 मिनट के बाद वो पानी आप पी पाएंगे? 5 मिनट के बाद उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसलिए नदी, अगर आप सच में उसकी इज्जत कर रहे हैं या उसको माँ कह रहे हैं, तो नदी को नदी रहने दीजिए, उसको गार्डन क्यों बनाएं? सर, हम अभी रिसेंटली लोकल्स के इंटरव्यू ले रहे थे एंड थोड़ी रिसर्च कर रहे थे, तो हमें पता चला कि यमुना में 17 नाले छोड़े जाते हैं एंड लोकल्स का कहना था कि ये उन्हीं 17 नालों के कारण यमुना इतनी गंदी है। बिकॉज जब यमुना में बाढ़ आती है तो यमुना पूरी साफ़ हो जाती है। अगर वो 17 नाले बंद हो जाएं तो यमुना अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो क्या देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा, नाले सर, यमुना जो आज से 30 साल पहले थी उसकी हालत बहुत अच्छी थी कंपैरेटिवली, तो क्या इट प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस यमुना को उतना साफ़ करना जैसे वो 30 साल पहले थी, या फिर इससे बेटर स्टेट में लाना? देखिए, अगर 30 साल पहले जो है यमुना एक्शन प्लान भी आई थी 1993 में, 30 साल से ज़्यादा हो गया, और तब से यमुना में पोल्यूशन बढ़ गया। देखिए, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है। हम ऐसा हम अगर कहें कि अभी जो पहाड़ों में जो स्थिति है यमुना की, क्या हम दिल्ली में कर पाएंगे? तो ये इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का कारण क्या है, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, शहर बढ़ने, और अब क्या है कि उस नदी से ही आप पीने के लिए पानी ले रहे हैं। तो नदी को अगर हम साफ़ करना चाहते हैं तो नदी में नदी का पानी आपको छोड़ना होगा। तो अगर हम उतना जो है, अगर फ्रेश वाटर फ्लो आ जाए तो नदी को सही कर सकते हैं। पर आप अगर वजीराबाद के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी बहता ही नहीं है, सिर्फ वेस्ट वाटर बहता है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, हम अपने 100% वेस्ट को भी सही कर लें, ट्रीट कर ले, तो उसका जो पॉलिसी है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर की BOD 10 mg पर लीटर होना चाहिए और उसका TSS 10 mg पर लीटर होना चाहिए। तो अगर 10 mg पर लीटर भी हम BOD ले आते तो यमुना देखने में अच्छी हो जाएगी, झाग नहीं बहेगी, पानी साफ दिखेगा, पर वो नहाने के लायक नहीं बन पाएगी। कारण यह है कि नहाने के पानी का BOD 3 mg पर लीटर होना चाहिए। तो अगर हमारी पॉलिसी जो है ट्रीटमेंट की अभी 10 mg पर लीटर की BOD की है, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में अगर हम इतने स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बना ले कि हमारी ट्रीटेड वेस्ट वाटर की BOD जो है 3 पे आ जाए, तब हो सकता है कि हम यमुना को उस लेवल पे ले जाए। पर आने वाले 10-15 सालों में नहाने के लायक यमुना बनना, ये तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर आप पिएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं यमुना को साफ़ करने के लिए, बाय पब्लिक और बाय गवर्नमेंट या फिर बाय इंडस्ट्रीज़? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अब? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी देश की यमुना या दूसरी नदियाँ भी साफ़ हो, तो पहला है कि जो पॉलिसी है, CPCB ने एक पॉलिसी दी है, जो हमारा वेस्ट वाटर है वो 10 BOD 10 TSS पे ट्रीट होगा। अगर हम ईमानदारी से अपने जितने भी वेस्ट वाटर है जनरेट कर रहे हैं पूरे देश में, अगर हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाएँ, तो हम जो है नदियों की स्थिति को बहुत हद तक बदल सकते हैं। आपको यमुना में झाग बहता नहीं दिखेगा, यमुना आपको स्वच्छ दिखेगी, नहाने के लायक नहीं बनेगी पर आपको देखने में अच्छी लगेगी, पशु पानी पी सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। एंड सर, अगर अभी भी हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, अभी भी कोई काम नहीं किया हमने, और ऐसे ही चलता रहा, तो आज से 20 साल बाद यमुना का क्या हाल होगा? इससे बुरा क्या ही करेंगे हम। अभी नदी नहीं, हमें लग रहा है हम किसी ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बर्फ़ बह रहा है। हाँ। तो इससे बुरा क्या कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी इतना बुरा कर दिया है कि अब अगर हम जाएंगे तो वो है कि कब्र खोदेंगे। अब ऐसे हम लेटे हुए हैं पूरी तरीके से, मरने के कगार पे हैं। तो अब इससे बुरा नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम लोग एक डेड लाइन पे, एक एज पे खड़े हैं बर्बादी की। अगर इससे भी अगर हम सोचें कि हम 10 साल और वेटे देंगे, तब तो फिर तो आप रिवाइव करने का जो 1% चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारा। एंड सर, जैसे हम लोग भी एक NGOs हैं, इन्वायरमेंटल सोसाइटीज़ हैं, तो हम क्लीननेस ड्राइव करते हैं, बट वो क्लीननेस ड्राइव 1 डे या 2 डे होती है, तो क्या वो एक्चुअल इम्पैक्ट डालती है यमुना साफ़ करने में? देखिए, क्लीनिंग ड्राइव जो होता है वो है कि लोगों को जोड़ती है। हाँ सर। और उससे होता है कि लोग जो है नदी पे तो आ पा रहे, लोग जो है नदी को भूल गए, लोग नदी पे नहीं आते, सिर्फ त्योहारों में आते हैं। उसके अलावा भी तो आइए आप, नदी एक जीवित एंटिटीज है जिससे जीवन है, उस पर आप आए। और क्लीनिंग ड्राइव से क्या होता है, जिस घाट पे अभी आप लोग हैं, ये कालिंदी कुंज घाट है। आज से 5 साल पहले जब हमने
स्टार्ट किया था 2019 में ये, तो ये घाट पे लोग नहीं आते थे। वहाँ तक जो है इतना जो है कपड़े और कचरे भरे हुए थे, तो सारे वॉलंटियर्स, बच्चे कॉलेज के और जो है टीम्स, बहुत सारी टीम आके साफ़ कर दी, तो आज आप इस घाट पे खड़े हो पा रहे। पब्लिक ने बहुत काम किया यमुना पे, और पब्लिक ने इस नदी के जो घाट है जो वो कर सकते हैं मैनुअली, सॉलिड्स को आपका जो है घाट से हटा दिया, और आपको यहाँ पे अब घाट पे लगेंगे तो आपको लगेगा नदी किनारे है। पानी गंदी है वो तो एक अलग बात है, वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, पर घाट पे आपको आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो इसी वजह से है क्योंकि क्लीनिंग ड्राइव करने के लिए कुछ बच्चे जो है हर वीक, 1-2 वीक नहीं, मतलब कि हम लोग 6 साल से कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हर वीक आते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये घाट आपको इतना साफ दिख रहा है। पब्लिक, बच्चे, सोसाइटी जो है अपना जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रही है। एक जिम्मेदारी जो है सरकार को निभानी है, वेस्ट वाटर। एंड सर, जो बच्चे, जो यूथ आजकल का जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है और जेन्युइनली चेंज लाना चाहता है, वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है एंड किस तरीके से यमुना को साफ़ करने में अपना पहली बात है कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन पुट किया था कि अगर हम नालों को बंद कर दें, तो अब हमने आपको बताया कि नाले का जो काम है वो है कि जो बारिश का पानी है वो लाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला, नाले भी उतनी ही जरूरी है जितना नदी है। तो यूथ से एक ही बात है कि हमें सही सवाल करना सीखना होगा। जिस दिन हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे इसके ऊपर कि यमुना क्यों गंदी है, नाले क्यों गंदे हैं, नाले गंदे हैं तो भी एक सवाल का वो बनता है कि नाले क्यों गंदे, नाले में गंदे पानी क्यों डाले जा रहे हैं, नाले तो बारिश के पानी के लिए थे। जिस दिन यूथ जो है इतना अवेयर हो जाए कि वो एक सही सवाल करना सीख जाए, तो जो है हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हम सवाल तो कर रहे हैं, बट हम सवाल इतने बेतुके कर रहे हैं आज के डेट में। अच्छी बात है, बेतुके ही कर रहे हैं, उसी से हम सीखेंगे भी। पर हमें है कि जैसे आपने आज तो किया ये सवाल कि यमुना गंदी है, इससे थोड़ा और जाए कि हाँ यमुना में नाले क्यों मिल रहा है, फिर उससे जाए कि नाले में गंदे पानी क्यों मिल रहा है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और एक उस सवाल पे पहुंचना पड़ेगा जिस सवाल से सरकार को लगे कि हाँ ये ठीक करेंगे तो पूरी नदियाँ ठीक होंगी। अच्छा, ये जो यमुना में हमें ये सफ़ेद झाग दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? देखिए, सफ़ेद झाग जो आप देख रहे हैं, आप जब घर में कपड़े धोते हैं, जब सर्फ डालते हैं, घोलते हैं तो झाग बनता है। आप कपड़े धो लेते हैं, हमने शैम्पू लगाए, झाग बना, बाल धो लिए, नहा लिया। बट जब हमारे घरों से वो पानी निकलता है, वो झाग वाला पानी होता है, वो है कि किसी नाले में जाती है, किसी नाले से जब नदी में आती है तो ये बनता है। वो हमारे आपके घरों का जो डिटर्जेंट वाला पानी है, शैम्पू वाला पानी है, उनके साथ साथ इंडस्ट्री में जो यूज होता है केमिकल्स, तो इन सभी की वजह से ये स्थिति आप देख रहे हैं। आप एक बात सोचिए, हम कहते हैं कि आस्था है, क्या आप आस्था के नाम पे अपने पीने वाले पानी में मूर्ति का एक टुकड़ा ऐसे डाल के फिर पानी पी सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आप वो नदी जिसको माँ कह रहे हैं, जो आपके आस्था का प्रतीक है, जिसकी आप पूजा करते हो, उसमें कैसे डाल दें किसी भी गंदगी? और आप समझिए कि अगर आप नदी को गंदा करेंगे, उस पानी को ट्रीट करने के लिए फिर से और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसे केमिकल मिल गए जो हम ट्रीट नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी में जाएगी। अगर सोचिए कि नदी में फूल डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, अगर नदी में फूल बहाना होता तो प्रकृति नदी में फूल ही बहाती, पानी क्यों बहाती? नदी में प्रकृति ने पानी बहाया है, उसका कुछ मतलब है। वो पानी आपके, हमारे लिए, उसके साथ पशु पंछी के लिए भी। आप तो चलिए ट्रीट करके पी लेंगे, पर वो पशु पंछी यही गंदा पानी यही पिएंगे, उनके पीने का स्रोत है। तो पानी को गंदा ना करें, किसी भी प्रकार की वस्तु ना डालें। किसी भी प्रकार की वस्तु आप नदी में डालते हैं तो वो नदी को मारती है। देखिए, होता ये है कि अगर मान लीजिए हमने एक फूल भी डाला तो उस फूल को गलाने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे नदी में और उस फूल को गलाएंगे। वो फूल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए खाना है, तो वो जब खाएगी तो उसकी संख्या ग्रो होगी, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करेंगे। तो होगा ये कि पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और पानी की BOD बढ़ेगी, जिससे नदी का पोल्यूशन बढ़ेगा। Until responsibility is unified, until the Yamuna has one guardian, she will keep paying the price of our collective neglect. The Yamuna cannot wait any longer. Programs like the Yamuna Action Plan and the Namami Gange have tried, but pollution runs deep. The river is struggling to breathe. Yet, restoration is still possible. If government, industry, and citizens step up together, sewage must be fully treated. Plants need proper connections, run efficiently, and remove harmful nutrients. Treated water
can be reused for irrigation and industry, giving the river a chance to flow clean again. Industries must stop dumping toxins. With strict monitoring, penalties, and cleaner technologies. Solid waste and plastics need to be cleared from riverbanks. Floodplains and riverfronts must be protected. They filter water naturally, recharge groundwater, and support life. Wetlands and bioremediation can help restore polluted stretches. Technology can guide us. AI, sensors, drones, and dashboards can track water quality, expose violations, and enable timely action. But revival isn't just about machines or rules, it's about people. Communities can segregate waste, reduce plastics, follow eco-friendly rituals, and join cleanup drives. Schools and youth groups can help monitor the river. Even small daily choices matter. सोच लो